Hello everyone, welcome to Only IS. Now this is a video series in which we are trying to analyze and discuss the political science optional paper of 2022, that is the recently conducted mains examination. Now we have already completed one video and we have already uploaded the first video in which we have analyzed the paper 1 of political science of 2022. Similarly, on the same lines we are going to analyze the paper 2 section A plus section B both in this particular video, and we'll try to understand as to which topics, which subtopics and which sections are more important from examination point of view as compared to the other parts of the syllabus. Now first things first, as I have also tried to explain in the previous video as to what is the importance of analyzing previous year question paper. देखिए यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी टफ एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस. नाउ होता क्या है, देयर इज वन टॉपिक, then that particular topic is actually divided into various subtopics, right? And every subtopic has different sections inside it. Now because of this thing, the UPSC ka syllabus is considered to be very very vast, but as I have told you earlier also, although vast, it is totally manageable. And to manage UPSC ka syllabus, it is very important to analyze the previous year question papers because it helps us in restricting ourselves from what to study and what not to study. See, UPSC के examination में it is more important to understand as to what not to study than to what to study. क्या पढ़ना है वो सबको पता है, बट क्या नहीं पढ़ना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट कैन बी टोल्ड ओनली थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज ऑफ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अलॉन्ग विद द सिलेबस दे आर कंसिडर्ड टू बी द बाइबल ऑफ दिस एग्जामिनेशन. बिकॉज ऑफ इनके बिना इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. That is why for every single aspirant it is properly advised that you should first of all analyze the previous year question paper. Only after that you should start writing and start reading your syllabus. नाउ इस साल के एग्जामिनेशन को अगर हम ओवरऑल इसका ट्रेंड समझें तो फर्स्ट थिंग दैट हैज टू बी अंडरस्टूड इज दैट यूपीएससी इज एक्चुअली मेंटेन्ड इट्स ट्रेंड. जो भी चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट ईयर से वो सेम सारे के सारे ट्रेंड्स ऑलमोस्ट देखने को मिले हैं. मोर देन 70 पार्ट ऑफ द सिलेबस, मोर देन 70 पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक्चुअली दैट केम इन 2022, इट एक्चुअली रिपीटेड फ्रॉम दोस टॉपिक्स व्हिच वर वेरी मच इन द ट्रेंड, which were actually we were expecting those questions and those questions came. But obviously there were some questions which came from untouched areas also. Now this is a very very proper trademark of UPSC, because see, it cannot give entire questions on previous year paper lines, because then every person will actually kind of know as to what questions to expect and what to not. So कुछ questions हमेशा ऐसे होते हैं which are considered to be a bit difficult, but more than 70 part of the syllabus was actually more than 70 part of the question was actually from the same lines as जो हम यहाँ पर expect कर रहे थे. नाउ पेपर का एनालिसिस को हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेट्स गो फॉर पेपर 2 सेक्शन ए, जिसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोला जाता है, और इस पर्टिकुलर पार्ट को हम समझते हैं कि इस पार्ट ऑफ द सिलेबस में कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और कौन सी चीजें लेस इंपॉर्टेंट थी. नाउ पेपर 2 सेक्शन ए को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट कैन बी कॉल्ड एज कंपैरेटिव थ्योरी, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, की कंसेप्ट्स एंड चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर. सबसे पहले देखिए, अगर हम कंपैरेटिव थ्योरी को समझे, सो कंपैरेटिव थ्योरी के जो क्वेश्चंस ऑल्दो 2017 और उससे पहले काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए करते थे, अराउंड 3 to 4, बट इन द लास्ट 4 to 5 years अगर आप समझेंगे द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज स्टैग्नेटेड इटसेल्फ टू अराउंड 1 to 2. मतलब 1 से 2 क्वेश्चंस अराउंड हर साल कंपैरेटिव थ्योरी से देखे जाते हैं. नाउ इट वाज इन 2021, दैट इज द लास्ट ईयर, द नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली रोज टू 4. 4 क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए थे. सो वी एक्चुअली थॉट कि मे बी कंपैरेटिव थ्योरी से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ सकते थे, बट यूपीएससी इज वंस अगेन ट्राइड टू स्टैग्नेट इटसेल्फ टू अराउंड 1 क्वेश्चन, एंड ये शो करता है दैट 2021 वाज जस्ट एन एनोमली. तो ये शो करता है कि कंपैरेटिव थ्योरी से नेक्स्ट ईयर भी हम अराउंड 1 से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देखिए पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चन दे वेरी फ्रॉम 0 to 1. Either there will be no question from politics or representation, or there will be a maximum of 1 question. So we have to plan accordingly. Now, how will this help while studying for this part of the syllabus? See, जब आप politics of representation का part को पढ़ाई करेंगे, you must understand as to what kind of questions have been asked. एंड आपको सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिलेबस के ऊपर फोकस करना है. नाउ द रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो रेस्ट है सिलेबस का पार्ट, उसको आप कहीं ना कहीं लेस इंपॉर्टेंट मार्क करके उसको स्किप कर सकते हैं. Although I would not advise you to skip anything because UPSC has a tendency to ask unsaid questions, but still the number of questions will not go from 1 to 2. Maximum there will be 2 questions. The number of questions will not increase after that. Now moving on to the next 2 part of the syllabus, that is key concepts and the changing international political order. Now ये दोनों part of the syllabus जो है they are considered to be comparatively more important. पेपर 2 सेक्शन से देखिए, अगर आप की कंसेप्ट्स की बात करते हैं, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि पहले 3 से 4 के आसपास में स्टैग्नेट करते थे, इट एक्चुअली रोज टू अराउंड 7,
4, and this year again we expected around 4 to 5 questions, and around 5 questions were asked from key concepts of international relations. So I hope you understand that this analyzing the previous year question paper is going to be very very important, because आपको एक बहुत better idea लग जाएगा that to how many number of questions can you expect from a part from one particular part of the syllabus, right? So similarly key concepts में number of questions has been rising in the last few years, and once again the number of questions are very very good, 5 questions from this particular part. Similarly to changing international political order है, उससे भी the number of questions have been very good, around 6 to 8 questions. Now if you'll see, although there is a decreasing trend in the number of questions, but still we are expecting around 4 to 5 questions, and once again we got around 5 questions in this particular part. So this shows that key concepts and changing international political order, which had been एक ऐसा ट्रेंड बन गया था पिछले 4-5 सालों से कि इन दोनों पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, और जो कंपैरेटिव एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम थे. सेम ट्रेंड एक्चुअली कंटिन्यूड दिस ईयर आल्सो, जहां पर की कंसेप्ट्स और चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर दोनों से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे, राइट, एंड जो कंपैरेटिव एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन थे उससे कंपैरेटिवली नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम थे. नाउ लेट्स टेक आवर एनालिसिस टू अ डिफरेंट लेवल. अब हम समझते हैं जो भी क्वेश्चंस आ रखे थे, वेदर दे वर फंडामेंटल क्वेश्चंस यानी कि स्टैटिक क्वेश्चंस, वर दे अप्लाइड क्वेश्चंस, और दे रिक्वायर्ड अ मिक्सिंग ऑफ करंट प्लस अप्लाइड, राइट, इस चीज को हम समझते हैं. सी, अगर आप पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखेंगे, द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस दे वर एक्चुअली 6 to 7, राइट, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे. एंड सिमिलरली अगर अप्लाइड क्वेश्चन की बात करते हैं तो 3 to 4 क्वेश्चन दे वर आस्क्ड इन अप्लाइड पार्ट, एंड करंट के एस्पेक्ट से भी अराउंड दे वर 3 to 4 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर, ठीक है. बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम करंट एंड अप्लाइड इट एक्चुअली स्टार्टेड डिक्रीजिंग फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स. नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगातार डिक्रीज होने लगे, एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज जस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम करंट इन 2020 एंड जस्ट 2 क्वेश्चन इन 2021. नाउ दिस शोज दैट जो करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली डिक्रीज हो रही थी. सी, पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो भी स्टीरियोटाइपिंग जो पीवाईक्यूज की जो स्टीरियोटाइपिंग बनी हुई थी पॉलिटिकल साइंस को पेपर को लेकर, वो लगातार ब्रेक कर रहा है यूपीएससी. वंस अगेन देखिए, पेपर 2 जो है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है, दैट इज कंपैरेटिवली कंसीडर्ड टू बी एक टाइप का डायनामिक पार्ट, बिकॉज ये लगातार चेंज होता रहता है. तो जितने भी बच्चे होते हैं जो कि एस्पिरेंट्स होते हैं, दे एक्चुअली एक्सपेक्ट कि यहां से क्वेश्चंस आएंगे, वो करंट से क्वेश्चंस आएंगे. बट एज यू कैन सी, ऑल्दो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले काफी ज्यादा आया करते थे करंट से, बट in the recent years, in the last few years, the number of questions they have been actually decreasing. And once again 2022 में the least number of questions they have been from current affairs, the maximum number of questions they have been from fundamental. See, this part is actually considered to be a dynamic part. Despite the fact of this, the number of questions they have been, maximum questions have actually come from the static part. Last year also the maximum number of questions they were actually from the static part, and the number of questions from applied parts and the current plus applied part, they have been actually decreasing as compared to previous few years. But still, we need to understand one thing here. See, one thing, आप एक चीज जो आपको समझना है यहाँ पर वो ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चन दे हैव बीन डिक्रीजिंग फ्रॉम करंट पार्ट, बट अगर आप ध्यान से सोचिए, स्टैटिक से 7 क्वेश्चन है, बट अगर आप अप्लाइड प्लस करंट को अगर एक साथ लेके चलते हैं तो अगेन यू आर गेटिंग अराउंड 7 क्वेश्चंस. सो ऐसा नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर पार्ट को किसी भी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू इग्नोर दैट पर्टिकुलर पार्ट, बट ऑब्वियसली यू हैव टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द स्टैटिक पार्ट, बिकॉज इट अलोन इज एक्चुअली कंप्राइजिंग हाफ ऑफ द पेपर, राइट. Now let's look for the holistic analysis of paper 2 section A. पेपर 2 सेक्शन ए को हम होलिस्टिकली समझते हैं कि पेपर का ट्रेंड कैसा रहा है. देखिए, सबसे पहले तो जैसा हमने अभी बात की कि जो फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि जो स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन थे, दे हैव बीन आस्क्ड वंस अगेन. नाउ पिछले कुछ सालों से भी लगातार जो फंडामेंटल क्वेश्चन, जो स्टैटिक क्वेश्चन है, वो पूछे जा रहे हैं. वंस अगेन फंडामेंटल क्वेश्चन जो स्टैटिक क्वेश्चन है, वंस अगेन दे हैव बीन आस्क्ड, बट द डिफिकल्टी लेवल दे हैव नॉट बीन इंक्रीज्ड. मतलब कि सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. यानी कि देयर आर सम क्वेश्चन व्हिच आर डायरेक्ट इन नेचर, मतलब डायरेक्टली उन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. अगर आप लास्ट ईयर से इस चीज को कंपेयर करते हैं 2021 से, तो लास्ट ईयर का ऑल्दो द क्वेश्चन वाज अगेन स्टैटिक, बट द क्वेश्चन वाज कंसीडर्ड टू बी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट. बट इस साल पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं है. वी आर गोइंग टू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर वन बाय वन इन फ्यू मोमेंट्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेपर वाज कंपैरेटिवली इजियर एज कंपेयर टू 2021. Similarly, as we discussed, जो current affair का part है, it has actually reduced drastically in last few years. This has been in trend कि current affair के question लगातार reduce हो रहे हैं, and once again this has been proved by UPSC 2022 paper, जहाँ पर number of question जो कि current affair से they were at just 3 questions. Now this shows that although this particular part of the syllabus is considered to be a dynamic part, but the number of questions from current affair they have actually been decreasing in the last 5 years. Now अगर हम comparative theory की बात करें, लास्ट ईयर 2021 के पेपर में द नंबर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चंस वर अराउंड 8, एंड इट्स 8 में से मोर देन 4 यानी कि मोर देन हाफ क्वेश्चन दे वर एक्चुअली फ्रॉम कंपैरेटिव थ्योरी. बट 2022 में द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम कंपैरेटिव थ्योरी दे हैव बीन जस्ट 2.
Now once again you can see a change in trend जहां पर जो कंपैरेटिव थ्योरी जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जाता था यूपीएससी के द्वारा कहीं ना कहीं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है. सिमिलरली एक चीज आपको समझना है 2021 में देयर वर वेरी लेस डायरेक्ट क्वेश्चंस. वहां पर एवरी सिंगल क्वेश्चन वाज काइंड ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चन जहां पर आपको स्टैटिक क्वेश्चंस को भी कहीं ना कहीं एनालाइज करना था एंड देन यू हैड टू राइट आंसर. बट 2022 के पेपर्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस और उसी को बैलेंस करके लिखने के लिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2B 3B 4B इसको अगर हम अभी थोड़ी देर में अभी हम डिस्कस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड एज टू दीस क्वेश्चन दे आर डायरेक्ट इन नेचर. यू डोंट हैव टू हैव अ स्पेशल नॉलेज टू अंडरस्टैंड दोस क्वेश्चन या फिर टू आंसर दोस क्वेश्चंस. Let's move on to the individual analysis of the questions. Now, if you'll see these questions that I have made, now you'll understand that. Now, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट इन नेचर है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट नीड्स वेरी वेरी लेस एनालिसिस बट ऑब्वियसली देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच नीड्स डीपर एनालिसिस. नाउ विल अंडरस्टैंड दोस क्वेश्चंस. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देयर हैज बीन अ क्वेश्चन ऑन लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड. नाउ अगर आप लिमिटेशंस की बात करेंगे इफ यू हैव एनालाइज्ड द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ लास्ट 5 इयर्स और सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट पिछले 3 सालों से 2019, 20 एंड 21 3 सालों से लगातार देयर हैज बीन अ क्वेश्चन ऑन लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड. राइट. सो if you would have solved the previous year papers of last few years you would have actually got an idea कि इस particular चीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है and इस particular क्वेश्चन को सॉल्व करना it was very very easy. Similarly moving on to the next question 1B. Now 1B में वंस अगेन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ग्लोबलाइजेशन के ऊपर से के कारण चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है. देखिए अगर आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे सिमिलर जैसे 2020 हो गया. ठीक है. 2020 में देयर वाज अ क्वेश्चन कि ग्लोबल साउथ यानी कि वंस अगेन डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पर्सपेक्टिव क्या है. सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ सिमिलर क्वेश्चन. सिमिलरली अगर आप पिछले 3 साल 2019, 20 एंड 21 को देखेंगे देयर हैव बीन क्वेश्चन कि ग्लोबलाइजेशन का डेवलप्ड इकोनॉमीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है. तो द क्वेश्चन हैज बीन ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड. ठीक है. नाउ दिस टाइम व्हाट दे डिड वाज डेवलप्ड वर्ल्ड को उन्होंने चेंज करके डेवलपिंग वर्ल्ड कर दिया. ठीक है. सो दे हैव आस्क्ड द अदर वे अराउंड. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. तो वंस अगेन दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू मस्ट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 1C. नाउ क्वेश्चन नंबर 1C एक टाइप का कंपैरेटिव क्वेश्चन है जहां पर मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी ऑफ आईआर एंड रियलिस्ट अप्रोच टू स्टडी ऑफ आईआर दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है. ऑब्वियसली यू नो द पार्ट ऑफ द सिलेबस दिस इज फ्रॉम अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. नाउ इफ यू विल एनालाइज द क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स सी 2013 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन मार्क्सिज्म, 2015 में रियलिज्म, 17 में रियलिज्म, 18 में रियलिज्म. देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन मार्क्सिज्म इन 19, 2021 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन न्यू रियलिज्म एंड वंस अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन मार्क्सिज्म इन 2021 ओनली. Now, although there have been no questions जहां पर दो different concepts को compare करने को बोला जाए in the last few years, but as you know that Marxism and Realism they both are hot topics from UPSC point of view and they have been repeatedly asked in the last 7 to 8 years. I hope you understand this and once again this is very very easy because every single person actually prepares Marxism and Realism both for their examination. Right? Now let's move on to question number 1D. Now this 1D is actually asking about bipolar structure एंड मल्टीपोलर स्ट्रक्चर. नाउ अगर आप इन दोनों चीजों के ध्यान से सोचेंगे तो 2017, 2019 एंड देन 2022. सो ऑलमोस्ट एवरी alternate year there have been a question either on bipolarity and multipolarity. बट इस साल 2022 में there have been a question जहां पर दोनों ही कंसेप्ट को लिंक करने की कोशिश की है. तो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है. सी इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में दोनों ही क्वेश्चन में दो डिफरेंट कंसेप्ट्स को आपस में लिंक करने की कोशिश की है. सिमिलरली वी हैड डिस्कस दिस इन पेपर 1 आल्सो जहां पर दो डिफरेंट जो पार्ट ऑफ द सिलेबस है उनको एक साथ ला करके उनको आपस में कंपेयर कराने की कोशिश की गई थी. नाउ सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ न्यू ट्रेंड इन यूपीएससी जहां पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में देयर आर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस जिनको आपस में कंबाइन करके एक सिंगल क्वेश्चन फ्रेम करके उनको आपस में एनालाइज करने की के ऊपर मतलब क्वेश्चन आ रहा है. सो while studying political science optionals you must have this thing in mind. While reading one part you must try and compare it to different part of the syllabus which are obviously comparable. ठीक है. उनको आपस में कंपेयर करना सीखना है आपको. Now similarly moving on to question number 1E. Now 1E was about national interest and how national interest is a essentially contested concept. See, try to understand one thing. National interest is a very very important topic from UPSC point of view, especially political science. And almost every single year there is at least one question. So we were again expecting a question on national interest and we actually got this particular question. So again this was an easy question. Now as you can see almost every single question in question number 1 that is 1A was easy, 1B was easy, 1C was easy, 1D was easy and similarly 1E was also easy. Now there have been several questions almost every single topic that was asked this particular year. So this shows कि UPSC का जो इस बार का पेपर आया है स्पेशली पेपर 2 का that was not that much deviating from the last year trends. जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो ट्रेंड हम लेकर चल रहे थे ऑलमोस्ट सेम लाइंस के ऊपर इस पर्टिकुलर साल भी क्वेश्चन पूछा गया है. So let's move ahead.
क्वेश्चन नंबर 2A को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2A इज एक्चुअली आस्किंग अबाउट कि हाउ हैज द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ऑगमेंटेड यानी कि इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का यहाँ पर इंपॉर्टेंस पूछा हुआ है कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इंक्रीज करने में ये काम करता है। नाउ if you will analyze the question paper of last few years, 2019 में there was a question on democracy promotion in developing countries, 2020 में there was a question on liberal democratic principles, 2020 में ही there was one more question on participation and strengthening democracy. Similarly 2021 में there was a question on political parties, pressure groups, how they are important to democracy. See, अगर आप उसको एनालाइज करते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग दैट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर देयर इज एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी वेयर द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि एक पर्टिकुलर जो फैक्टर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है टू अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। देखिए यहां पर डेमोक्रेसी के प्रमोशन के बारे में बात की गई डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात की गई है, यहां पर पार्टिसिपेशन की बात की गई है, यहां पर लिबरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है। बट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर देयर हैज बीन एटलीस्ट वन फैक्टर जिसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से ये फैक्टर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को स्ट्रेंथन कर सकता है। Again, we were expecting this question and we actually got this particular question. Similarly, question number 2B को अगर हम देखें, the 2B is actually asking about the role of social movements in strengthening the democratic process. Now, अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं तो you can easily understand that once again how to strengthen democracy उसके ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है। Now, social movement जो है this is actually a very very important topic from UPSC point of view, but पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन इसके ऊपर आ नहीं रहा था, right? Now, although we were not expecting this particular question this year also, but UPSC has a nick of obviously asking some unheard questions, so we can categorize this particular question as a moderate question because this was not that much expected. Now similarly 2C question, it was asking about the composition of international court of justice. Now देखिए एक चीज समझिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फंक्शंस को, रोल के, इसके इंपॉर्टेंस के, इसके लिमिटेशंस को, इसको हर पर्सन प्रिपेयर करता है, बट उसके कॉम्पोजिशन को बहुत कम लोगों ने प्रिपेयर किया होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन मार्क्ड एज टफ। नाउ कंपोजिशन मींस दिस इज अ वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, ठीक है, कुछ स्टैटिक पार्ट पूछ रहा है। नाउ जिसको ये चीजें याद होंगी ओनली ही विल बी एबल टू आंसर दिस थिंग, राइट? सिमिलरली देयर इज अ क्वेश्चन ऑन वॉलंटरी जुरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो सी देयर हैव बीन सम क्वेश्चन ऑन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन लास्ट फ्यू इयर्स, बट ऑब्वियसली दिस हैज बीन मार्क्ड टफ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज कंपोजिशन पूछा गया है एंड कंपोजिशन इज नॉट दैट that important from mains point of view, but UPSC here has shown actually that you don't have to skip anything. You should have at least idea about the composition of International Court of Justice so that you can at least write in this particular examination. I hope you got idea of this thing. Now let's move to question number 3A. Now 3A is actually asking about to critically examine the rise of China as a great power and implication on Asian political order. देखिए राइजिंग चाइना के ऊपर क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर पूछा जाता है। चाइना जो है एक बहुत ही होलिस्टिक टॉपिक है एंड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस, बट दिस क्वेश्चन इज नॉर्मली आस्क्ड इन पेपर 2 सेक्शन बी। नाउ बट दिस ईयर द क्वेश्चन हैज बीन इन पेपर 1। नाउ एक चीज समझिए, यहां पर द क्वेश्चन इज एक्चुअली अबाउट चाइना बट इट इज रिलेटिंग इट टू एशियन पॉलिटिकल ऑर्डर, दैट इज व्हाई इट हैज बीन पुट इन पेपर 1, ठीक है? सो दैट इज व्हाई आई हैव मार्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज मॉडरेट क्वेश्चन. Now, let's moving on to question number 3B. The question is asking about the collective security and what are the dimensions of collective security. Now, as you know that this is a direct part of the syllabus, so this is a very very easy question. जहाँ पर 2006 में 2013 में there have been some direct questions in the past also. So if you would have analyzed the previous year papers and if you had solved the previous year papers, obviously आपके पास कुछ set of points ready होंगे collective security के different dimensions के लिए and आपने easily इस question को solve कर लिया होगा. Similarly, let's move on to question number 3C. So 3C actually talks about the efficiency of global convention to combat international terrorism. Now, terrorism is again a very very hot topic for UPSC, जहां पर almost every single year there is a question on terrorism. Now, अगर आप ध्यान से सोचें कि terrorism के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उनके कारण पूछा गया है, बिकॉज ऑफ तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान, हमस ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। Now, इन सब चीजों के कारण एक चीजें कंबाइन होकर जो इंटरनेशनल टेररिज्म बनाती हैं उसको किस तरीके से ग्लोबल कन्वेंशंस डील कर सकते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? सो दिस वाज आल्सो ऑब्वियसली ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। अगर आप ध्यान से सोचें तो इंडिया ने भी कहीं ना कहीं जो अभी यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर बनाया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, एंड इंडिया इज आल्सो एक्चुअली एम्फसाइजिंग मोर ऑन टेररिज्म, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now let's move on to question number 4A. Now 4A is actually about WTO negotiations. Now उसके reasons बताने हैं with respect to fisheries. Now इस चीज को ध्यान से समझिए. Now I have marked this moderate to tough. Why? Because देखिए there have been some question on WTO in the past because as you can see the question in 2005, 13, 2017, 2020, almost every single year there have been at least one question in WTO, but the question has not been around fisheries sector.
नॉर्मली क्वेश्चंस डेवलपिंग इकोनॉमीज के आसपास होता है, बट दिस टाइम क्वेश्चन हैज बीन ऑन फिशरीज. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. Moving on to the next question, that is 4b. Now this question is about anarchical world. Now जो anarchical world है उसमें रियलिस्ट प्रिस्क्रिप्शन क्या है, किस तरीके से कोई पर्टिकुलर स्टेट जो है वो इंश्योर कर सकता है कि सर्वाइव कर सके. नाउ देखिए, जो रियलिस्ट का पर्सपेक्टिव होता है वो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्क्ड इन सम और द अदर फॉर्म. ठीक है, तो इस साल देखिए रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, तालिबान का राइज हुआ है, इन सब चीजों को अगर आप कंबाइन करके एक सिंगल फैक्टर लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड में एनार्की है वो लगातार इंक्रीज हो रही है. एंड इस पर्टिकुलर टाइम में रियलिस्ट ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया है एज टू हाउ अ पर्टिकुलर स्टेट कैन सर्वाइव, इसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है. नाउ ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड एंड दैट इज व्हाई आई हैव पुट इट इन मॉडरेट टू टफ जो कैटेगरी है उसके अंदर. Similarly, let's move on to question number 4c. Now 4c देखिए, जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है, obviously this was a very very hot topic. Now although the question was कि इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ये जो वॉर चल रहा है उसके किस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका इंपैक्ट हुआ है वर्ल्ड के ऊपर, दैट इज ऑन द एनर्जी नीड्स. एंड द क्वेश्चन हैज एक्चुअली बीन आस्क्ड ऑन दैट वेरी ट्रेंड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट एनर्जी नीड्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है यूक्रेन और रशिया के वॉर का, उसी चीज के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है. देखिए एक चीज समझिए, जो यूरोपियन यूनियन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर देयर इज एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑन ईयू. इस साल भी रशिया यूक्रेन का जो प्रॉब्लम हुआ है, नॉर्थ स्ट्रीम, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2, उन सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं कंबाइन होकर ये एनर्जी नीड्स का क्वेश्चन रशिया यूक्रेन के वॉर को कंबाइन करता है. एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड. Now this was all about the paper 1 section A, paper 2 section A, जहां पर हमने कंपैरेटिव के हर एक क्वेश्चन को होलिस्टिकली एंड इंडिविजुअली उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करने की कोशिश की. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पेपर 2 सेक्शन B, जहां हम जो इंटरनेशनल रिलेशन है और इंडियाज रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज उसको समझते हैं एज टू हाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिलेबस फेयर्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. इसको हम प्रॉपर्ली 2022 के कंपैरिजन में समझते हैं. Now the most important topic in this is India's foreign policy and what are the recent development in India's foreign policy plus India's nuclear policy. Now, although 2017 से पहले the number of question were very stagnated, around 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, but from 2018 onwards to the present times that is 2022, almost every single year the number of question has actually increased. 5 to 8 to 4 to 5 to 5. Once again, we were expecting around 4 to 5 questions this year, and we actually got around 5 questions this year from India's foreign policy, India's recent developments in foreign policy, and the nuclear policy of India. ठीक है, तीनों ही पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से अराउंड 5 क्वेश्चन भी इस साल पूछे गए. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस जो कि इस पर्टिकुलर पार्ट में पूछा जाता है, दैट इज अबाउट इंडिया एंड साउथ एशिया, जहां पर ग्लोबल साउथ, यूनाइटेड नेशन, नैम, इन सबको अगर हम कंबाइन करें, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग अराउंड 5 to 7. Now देखिए, there was 7 question in 2017, then 5 question, then 3 question, 7 question, 6 question. We were expecting around 6 to 7 question this year, but the number of question decreased to around 4. Now this again shows कि although the number of question they have been increasing in the last few years, but इस साल क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का जो नंबर था जो कि इंडिया और साउथ एशिया का था वो कंपैरेटिवली डिक्रीज हो गया. Now then let's talk about India and the global powers, जिसमें USA, चाइना, रशिया, इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. Now there was a time before 2017 when the number of question was around 4 to 5 in this particular part. But तब से almost every single year the question has actually stagnated itself to around 3 to 4 questions. Once again we got 4 questions, which was one more than we expected. That is, we expected 3 questions obviously, but we got around 4 questions, so that was a positive thing because all the questions are very very easy to solve in this particular part. आई होप आपको चीजें समझ आ रही है. सी, अगर आप ध्यान से देखते हैं जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, इट हैज एक्चुअली शोन राइजिंग ट्रेंड, जहां पर द नंबर ऑफ क्वेश्चन दे हैव बीन स्टैग्नेटेड अराउंड 6 to 7, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस. आई होप आपको इस चीज को प्रॉपर्ली समझने में हेल्प मिली हो. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज जो एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें हम समझते हैं दैट हाउ मेनी क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिक, अप्लाइड एंड करंट प्लस अप्लाइड पार्ट दे हैव बीन आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन. देखिए, अगर हम स्टैटिक पार्ट की बात करें, द नंबर ऑफ क्वेश्चन दे एक्चुअली स्टैग्नेटेड इटसेल्फ टू 4 to 5 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर. बट पिछले 2 सालों में द नंबर ऑफ क्वेश्चन दे हैव इंक्रीज्ड एंड दे हैव रीच्ड अराउंड 7 to 8. दैट इज मोर देन हाफ द क्वेश्चन दे आर फ्रॉम फंडामेंटल पार्ट, दैट इज द स्टैटिक पार्ट. Similarly, अगर हम अप्लाइड पार्ट की बात करते हैं, द नंबर ऑफ क्वेश्चन दे एक्चुअली अर्लियर यूज्ड टू बी अराउंड 5 to 6, बट पिछले कुछ सालों में नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज हो गया था. वंस अगेन द क्वेश्चन हैज स्टार्टेड टू पिक इटसेल्फ. नाउ विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द जो सिलेबस था जहां से पहले पूछा जाता था वो डिक्रीज हो गया, दैट इज द करंट प्लस अप्लाइड क्वेश्चंस, जहां आप देख सकते हैं अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन वर आस्क्ड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर. अगर आप ध्यान से देखें पेपर 2B, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंडियाज रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज, दिस इज एक्चुअली मोस्ट डायनामिक पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. सो वी विल एक्सपेक्ट द मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से लिंक्ड हो. ठीक है, और ऐसा हो भी रहा था अभी तक पिछले सालों तक, बट 2022 में यानी कि दिस पर्टिकुलर ईयर देयर वाज जस्ट अ सिंगल क्वेश्चन दैट वाज करंट प्लस अप्लाइड क्वेश्चन.
Now this shows that UPSC is somehow trying to change the stereotype that has been set with political science and international relation के ऑप्शनल के साथ में. आई होप आपको उस पर्टिकुलर चीज को समझने में प्रॉपरली हेल्प मिल रही है. नाउ अगर हम इसका होलिस्टिक एनालिसिस को हम ध्यान से समझें तो विल गेट टू नो दैट पिछले साल तक जो करंट अफेयर्स था दिस वाज द मेन स्टे ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, बट दिस ईयर द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर पार्ट इट एक्चुअली डिक्रीज्ड. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट पेपर्स जहां पर करंट अफेयर क्वेश्चन दिस वाज जस्ट वन क्वेश्चन जो कि इस पर्टिकुलर सेंस से पूछा गया था. सिमिलरली इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट था, नाउ दिस वाज अ वेरी वेरी विजिबल ट्रेंड जहां पर हर साल इंडिया के फॉरेन पॉलिसी से द नंबर ऑफ क्वेश्चन दे हैड बीन 5 to 6 क्वेश्चंस. Once again, this particular trend actually was on the similar lines, जहां पर इस साल भी the question was around 6 questions. Similarly, the number of questions जो कि fundamental question थे, they have actually increased and पिछले कुछ सालों से अगर हम देखेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे तो इट शोज कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ग्रास्प ओवर द सब्जेक्ट है, सिलेबस के डेप्थ में उसको कितनी अच्छी तरीके से पता है, इन सब चीजों को अगर हम कंबाइन करें, द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम फंडामेंटल पार्ट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग. This shows that along with the current part, you cannot actually skip the fundamental parts, जो कि हमारे पेपर 2 सेक्शन बी के अंदर आते हैं. Once again, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड की बात करते हैं, देन कुछ हिकअप्स को छोड़ कर दीजिए, कुछ जो चेंजेस हुए उनको छोड़ करके बाकी जितने भी पार्ट है उन सब में ट्रेंड जो है दे हैव बीन ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर पैटर्न एज कंपेयर टू द पिछले कुछ सालों में. सिमिलरली जो डिफिकल्टी लेवल है इट हैज कंपैरेटिवली डिक्रीज्ड. नाउ 2021 का पेपर जो था पॉलिटिकल साइंस का, दैट वाज कंसीडर्ड टू बी काइंड ऑफ अ टफ पेपर. We were expecting 2022 on the similar lines, but this time the difficulty level was slightly decreased. Similarly, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे which were directly repeated. अगर आप इंडिया का वर्ल्ड ऑर्डर विजन वाला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियाज रिफ्यूजल टू साइन एनपीटी, फिर इंडियाज क्लेम टू यूएन परमानेंट सीट जो है, ये सब शो करता है कि कुछ टॉपिक्स, नॉट द क्वेश्चंस बट द टॉपिक्स, दे हैव बीन एक्चुअली रिपीटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द पास्ट 3 to 4 years. Now this is very much visible अगर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली एनालाइज करें तो. Now let's individually analyze all the questions. See, first of all let's talk about question number 5A. यहाँ पर peaceful coexistence की बात की गई है in India's foreign policy. मतलब इंडिया का जो foreign policy है, how उसके अंदर एक सबसे important part is that is peaceful coexistence. अगर आप ध्यान से देखें 2018, 19, 20 and 2021 almost every single year there has been a question on foreign policy and what are the different determinants of this foreign policy. So this was very much on the expected lines. Still I have put it in easy to moderate because this is a specific question कि peaceful coexistence को ही आपको कहीं ना कहीं इस particular question के अंदर highlight करना होगा. That is why I have put it in easy to moderate category. Now moving on to question number 5B. Now this particular question is actually asking about South Asia. Now how, in which ways and which means greater economic cooperation can be achieved within the within the member of South Asia. देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर को प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे 2020, 2021 देयर हैज बीन रिपीटेड क्वेश्चन ऑन साउथ एशिया. इसके अलावा सार्क के ऊपर, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके ऊपर लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो वी वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन कि साउथ एशिया के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए एंड वी हैव गॉट दिस वेरी क्वेश्चन. सो दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपने प्रॉपर्ली सिलेबस को फॉलो किया होगा इस बार तो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन टू फॉलो. Moving on to question number 5C, this question actually asked the relation between India and Bangladesh in terms of hydro cooperation. मतलब water से related जितने भी deals वगैरह होती हैं उसके तहत इसके क्वेश्चन को पूछा गया था. Now this was a very easy question. Why? See, in the last 2 years, 2020 के अंदर भी इंडिया बांग्लादेश का हाइड्रो पॉलिटिक्स पूछा गया. 2021 के अंदर इंडिया बांग्लादेश का क्रॉस बॉर्डर इशू पूछा गया. So if you see, इंडिया और बांग्लादेश का टॉपिक जो है, it has been actually repeating itself since the last 3 years. पिछले 3 सालों से लगातार इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं. एंड वंस अगेन इन 2022 द क्वेश्चन हैज रिपीटेड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रो कॉर्पोरेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस, इसलिए इस क्वेश्चन को हम इजी की तरह मार्क कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5D. देखिए 5D जो है, जहां पर इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में बात करता है एंड इट हैज स्पेसिफिकली आस्क्ड फॉर बेका. जो बेका रिलेशन है इंडिया और यूएस के बीच में, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया. नो एज यू नो, इंडिया यूएस ने 4 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं एंड वन ऑफ दैट इज बेका. Now, although BECA is not the latest one, but still the question has been asked. This shows that along with the recent current affairs, you must be acknowledged with the previous current affairs. मतलब पिछले कुछ सालों में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सिलेबस में रही हैं हमारे, उन सबको भी कंप्लीट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है. Similarly, you can see 2016 में, 18 में, 20 में there have been repeated questions जहां पर इंडिया और यूएस के स्ट्रेटेजिक रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. Still, because the BECA is not directly in news this year, that is why I have marked it as moderate to tough question. Now, let's move on to the question number 5E. Now here, the question is about the role of public diplomacy in enhancement India's global standing. See, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर्टिकुलर चीज में पब्लिक डिप्लोमेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है.
वंस अगेन दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी पूछा जा रहा है ना। अगर आप 2019 का क्वेश्चन देखेंगे देयर वाज अ क्वेश्चन की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक डिप्लोमेसी की क्या इंपॉर्टेंस थी। सो काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज ऑन द सिमिलर ट्रेंड, जैसा क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी आर बीइंग आस्क्ड अगेन एंड अगेन एंड वंस अगेन द क्वेश्चन इज ऑन द सिमिलर लाइन। ठीक है, कुछ बहुत डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, ऑन द सेम लाइन क्वेश्चन है। Moving on to next part, that is question number 6A. Here the question is on new international economic order and this is a very very simple question जहां पर relevance पूछ रहा है in the new international economic order। क्या रेलिवेंस है इस चीज के? नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ऑल्दो जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आए हैं इन द रिसेंट ईयर्स, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना लगातार बनी रहती है। देयर वर क्वेश्चन ऑन 2000 के अंदर एक क्वेश्चन आया था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के ऊपर, 2008 के ऊपर इसको एक्सप्लेन करने को बोला गया था। सो दिस वाज काइंड ऑफ एक टाइप का एनोमली था बिकॉज पिछले कुछ सालों से नहीं पूछ रहे थे, बट दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व अगर आपने सिलेबस को प्रॉपर्ली कंप्लीट किया होगा तो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6B, इट वॉज आस्किंग टू क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ टर्न अराउंड इन द ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। अगर आप पोस्ट कोल्ड वॉर के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं हम नैम के बारे में बताएंगे, पंचशील एग्रीमेंट के बारे में बताएंगे। वी हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंट एग्रीमेंट्स, राइट। नाउ 2003 में देयर वाज अ क्वेश्चन जहां पर नॉन अलाइनमेंट के ऊपर, मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में नॉन अलाइनमेंट के ऊपर क्या क्वेश्चन था उसकी इंपॉर्टेंस पूछी गई थी। इफ यू प्रॉपर्ली एनालाइज क्वेश्चन नंबर 6B ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, और इसे अगर हम एनालाइज करेंगे 2003 के क्वेश्चन से, यू विल सी दिस इज द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एक्चुअली। दिस शोज दैट द हिस्ट्री एक्चुअली रिपीट्स इटसेल्फ एंड it has actually repeated the same question with different wordings. This shows अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सीरियसली लिया होगा, अगर आपने उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर नोट्स बनाए होंगे तो आपका दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड हैव बीन अ पीस ऑफ केक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6C. 6C was asking about NPT and why has India not signed it yet. Now, अगर हम 2011 का क्वेश्चन देखते हैं, still this was the same question that why India is actually opposing NPT and why CTBT is important and all. The point is again the question was actually repeating itself. Once again it shows कि PYQ की जो importance होती है it has actually grown over the years. Moving on to the next part, question number 7A. The 7A is asking about India Japan और what are the main drivers of this particular इन दोनों कंट्री के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बीच में मेन ड्राइवर्स क्या क्या है। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप 2018 के क्वेश्चन को देखते हैं तो इंडिया जापान के ऊपर क्वेश्चन था, 2020 के ऊपर इंडिया जापान के अंदर क्वेश्चन था। सी इंडिया एंड जापान एक्चुअली आपस में बहुत अच्छी तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं इन द लास्ट 5 years एंड देयर हैव बीन सेवरल क्वेश्चंस टू प्रूव दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दिस शोज कि इंडिया जापान इज अ हॉट टॉपिक एंड एनी क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट इज एक्चुअली अ बोनस बिकॉज एवरी सिंगल थिंग इज वेरी मच क्लियर विद ऑल द एस्पिरेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट एज वेल। Moving on to the next question number 7B. This is about look east policy. Now please understand one thing. There are two different policies. One is look east policy and there is act east policy. Now act east policy जो है वो बाद में आया है as compared to look east policy. This shows once again the question is not the latest current affairs. The question is on the पिछला वाला current affair. एक ऐसा policy which was already which has already been launched a few years ago, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है and that too with respect to north eastern states. ठीक है, 2018 के अंदर भी देयर वाज अ क्वेश्चन जहां पर लुक ईस्ट पॉलिसी पूछा गया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पर्सपेक्टिव से। वंस अगेन दिस शोज कि हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ एंड वंस अगेन दिस सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड विद सम डिफरेंट वर्डिंग्स। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंस को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रहा है। Let's move on to question number 7C, जहां पर the question has been asked about why India should actually get the permanent seat in UN Security Council. Once again 2018 का अगर आप क्वेश्चन देखते हैं यहां पर ऑपोजिट पूछा हुआ था दैट व्हाट आर द चैलेंजेस, क्यों इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिल रहा है। दिस टाइम इट हैज आस्क्ड कि क्यों इंडिया को परमानेंट सीट मिलना चाहिए। वंस अगेन कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट मैटर होगा इट विल समहाउ दोनों के बीच में कॉमन सब्जेक्ट मैटर होगा एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन एज टू व्हाई इंडिया शुड गेट दिस सीट इन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सो द क्वेश्चंस आर एक्चुअली रिपीटिंग इटसेल्फ। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन 8 को भी देखते हैं, देखिए यहाँ पर इंडिया इजराइल बायलैटरल टाइज के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर हमारे फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से डिपेंडेंट है इंडिया इजराइल के ऊपर। देखिए 2020 के अंदर भी देयर वाज सिमिलर क्वेश्चन ऑन कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। इस बार भी इजराइल के ऊपर क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? बिकॉज ऑफ द रीसेंट डिहाइफिनेटेड पॉलिसी बाय इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीजों को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं, यू विल गेट टू नो दैट इंडिया और इजराइल का जो रिलेशनशिप है that is actually a very important topic from UPSC point of view. We were expecting this particular thing and we actually got this thing. Question number 8B, what are the consequences of illegal cross-border migration in India's northeastern regions? Now, इसको अगर हम 2021 यानी कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन से इसको हम अगर लिंक करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, 2021 क्वेश्चन आस्क्ड कि क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार विद इंडिया।
अगर आप ध्यान से सोचें, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन्स हैं उनके साथ बांग्लादेश और म्यांमार ही तो टच कर रहे हैं. दिस इज एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वर्डिंग्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. जो यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन कौन से डिफरेंट जो कंट्रीज है उनका लीगल माइग्रेशन हो रहा है, और यहाँ पर बस नाम दिया हुआ है बांग्लादेश एंड म्यांमार. सो एक्चुअली these are both the same questions, but it has been asked in a different wordings only. And finally, the last question was about 8C. Now this asked, discuss India's vision of a new world order in 21st century. See the question in 2019. Evaluate India's vision of a new world order. This is exact the same questions. Now this all the questions where I have tried to show you that the question that has been asked in 2022, they are actually replicas of the question asked in previous year papers. This shows that if you solve the previous year question papers properly, you will actually have a very good grip, very strong grip over the content of this particular examination. Now, what are some suggestions from Only IAS to you? First of all, syllabus की किसी भी particular part को छोड़ना is not that much, उसको मतलब उतनी अच्छी बात नहीं है. You have to cover every single aspect of the syllabus. Second, you have to practice previous year question papers because those are the most important areas, and as you have seen in the last few slides that many questions they have actually been repeated in the same parameters just with different wordings. ठीक है, शो करता है कि अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपने प्रॉपर्ली प्रैक्टिस किए हुए हैं, if you have the content for those questions, you will actually be in a very good position to write a good answer from that. थर्ड, आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ लेटेस्ट आर्टिकल्स नहीं, बट ओल्डर आर्टिकल्स जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं उन सबके साथ पे लिंक करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दिस शोज कि न्यूज़पेपर को जो भी कोर सिलेबस है उसके साथ पे लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द रशिया यूक्रेन वॉर, ट्राई टू लिंक इट टू द बेसिक पार्ट. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. और यही फाइनल चीज है दैट बेसिक के साथ स्टिक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जो फंडामेंटल पार्ट ऑफ द सिलेबस है दोनों को साथ लेकर आना इंपॉर्टेंट है. डायनामिक प्लस द थ्योरेटिकल पार्ट दोनों को साथ लेकर आइए. Don't miss out any one of these because as you have seen some years, कुछ सालों में जो theoretical part होता है those increases, and इस particular साल 2022 में जो analytical questions हैं they have actually increased themselves. This shows that previous year question को properly करना, उसको properly समझना. You should have one at least pages जहाँ पर आपने almost हर question के ऊपर कुछ ना कुछ fodder material ready किया हो. Finally, I would just like to tell you that Only IAS का जो मेंस का टेस्ट सीरीज था 2022 का, this actually had a strong resemblance to the 2021 और 2022 PSIR का मेंस पेपर. So अगर आप चाहे तो Only IAS का जो प्रीवियस और फोर्थ कमिंग टेस्ट है उसको आप प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं and try to write some answers. You will get a very good hold of this particular thing. I hope you got some benefit out of this video and you have understood as to what is the basic requirement, what is the main requirement of UPSC for political science papers. I hope you have gotten a very good idea as to which part of the syllabus are more important as compared to other part, and you must have got a good idea about which part to read and which part to skip from the examination point of view. Now this was all in this video. Thank you so much for listening.